राइट. सो द आइडिया इज दैट हमारे को जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब्स, यहाँ पर एक वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है. बिकॉज क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, देयरफॉर पूछा जा सकता है. दैट्स द बेसिक आइडिया. एंड गिवन द फैक्ट दैट दीज आर इंपॉर्टेंट इश्यूज, given the fact that these are important issues, therefore it becomes very very critical, very very important कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा काम करने की कोशिश करें. ठीक है. सो वेलफेयर स्टेट, social justice, government's role, agrarian distress, non-performing assets, loans. And there is one uh, kind of, this thing which is an aberration, which is this topic over here, which is e-commerce. ठीक है. So let's try to focus over here. इसमें से कुछ करेंगे हम. ठीक है. Manufacturing and jobs. So I will simultaneously note it down because in my subsequent lectures, what I will do is that मैं इसी के ऊपर जो है आपको फर्दर काम करवा कर दे दूंगा. राइट. So that from our end we are clear that कि if they ask us essays related to manufacturing, related to job, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नोन टू एवरीबडी. क्या पूछेगा भी मालूम है अपने को. वो यही पूछने वाला है कि हाउ कैन इंडिया इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वही पूछेगा. एंड जॉब्स के अंदर भी वो वही पूछेगा कि हाउ टू क्रिएट जॉब्स. राइट. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है. राइट. मूविंग अहेड, जस्ट होल्ड ऑन. या, how do you clear the annotations? Just hold on for 1 second. Yeah, this is painful. It's better that I don't use this, and I use this. Polity and governance, right? These are the topics. Okay. So in the last couple of years, apparently they have gone a little slow on polity and governance related topics. Okay. So in 2020, they asked about non-performing parliament, drawbacks in the Indian administrative service, need for reforms, individual freedom versus societal responsibility, electoral reforms 2018, Kashmir bone of contention, minority politics 2017. Right. I have a very strong sense that this will repeat itself for the simple reason that simultaneous elections ka report was out because of that. So one topic that I would like to take a punt on, वो होगा simultaneous elections. उसके ऊपर हमारे को जो है थोड़ा सा काम करके रखने की कोशिश करनी चाहिए. That's something which is immediately coming to my mind, right? That is something which is immediately coming to my mind कि ये पूछा जा सकता है. I'm just trying to predict. बाकी पूछने में तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं. ठीक है. Moving ahead, societal issues के अंदर let us see the kind of topics that have been asked. काफी topics पूछे गए हैं. ठीक है. So there is personality development through community service topic over here. ठीक है. This is very very fresh topic. ठीक है. काफी अच्छा टॉपिक है, काफी नया टॉपिक है. देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी इन एमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि 2022 के अंदर पूछा गया. सो वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स बार बार में आएंगे. राइट. वो बार बार में आने वाले हैं. दैट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है. तो 2 बार तो ऑलरेडी पूछ चुका है. 2016 में पूछ चुका है, 2022 में पूछ चुका है. आई डोंट सी व्हाई दे शुड आस्क दिस अगेन. ठीक है. उसके बाद जो है एजिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका है. ठीक है. Equations between economic progress and receding relations, right? कि how important are relations, etc etc, वो हो गया है. ऑनर किलिंग के ऊपर पूछ लिया है, पॉवर्टी पे पूछ लिया है, राइट, इनटॉलरेंस पे पूछ लिया है, राइट, जो इंडियन कल्चर की जो अडेप्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस है उसके ऊपर पूछ रहा है, राइट. Now, Divya, I want you also to contribute to this discussion, and everybody else also can contribute to this discussion. I can see your messages, Divya, if you are willing to share messages, and you can unmute and speak. You don't need to switch your camera on. You can unmute and speak, Divya. I am absolutely okay with there being background noise in your Aju Baju wala area. I don't care about all of those things. So it will become an interactive class. So societal issues point of view, say, what do you think? Right, based on what you are seeing, based on what you have read, what do you think?
is likely to get asked from a societal issues point of view? क्या पूछा जा सकता है? राइट, अनम्यूट नहीं हो रहा है। राइट, सो मैं आपको अनम्यूट कर दूं। राइट, अब अनम्यूट हो गया है शायद दिव्या, करेक्ट? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? राइट, सो वी आर डिस्कसिंग कि अब सोसाइटल इशू में क्या पूछ सकता है। राइट दिव्या? यस सर। या, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप अपने आप को फ्री रखो यार, चिल रखो, एकदम आराम से आप मेरे से बातचीत करो। राइट, एंड वी विल मेक दिस सेशन वेरी पावरफुल एंड वेरी यूजफुल फॉर यू, डोंट वरी। मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है? सो आई डोंट सी ओके कि इनटॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, कोई टॉपिक बन नहीं रहा है इस बार, ठीक है? डेफिनेटली एक तैयारी तो हमारे को विमेन के ऊपर कर ही लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। राइट, विमेन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है? यस तो एक टॉपिक तो अपने को विमेन से रिलेटेड तैयार कर ही लेना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट टाइप ऑफ टॉपिक, वो एक सदाबहार टॉपिक है। राइट, एंड उसके अलावा अभी देखो यस। कोई कम्युनलिज्म वगैरह तो कुछ चल नहीं रहा है न्यूज में, ठीक है? वुमेन इश्यूज ही चले थे, वो रेप वगैरह हो गया था वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन हो गया था। राइट, होना भी चाहिए, प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो विमेन का तो मैटर अपने को फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अपने को डिस्कस करना ही करना है इन इन दीज 3-4 लेक्चर्स दैट आई एम शेड्यूलिंग मंडे टू थर्सडे, ठीक है? तो सिक्योरिटी का, विमेन एस्पेक्ट का यहाँ पर हम एक इशू डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मेरे को एज सच कुछ अभी इमीडिएटली तो नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ नजर आ रहा है दिव्या तो आप बताइए। सर क्राइम से रिलेटेड हो सकता है, और प्रोग्रेसिव कैसे कर सकते हैं हम इन चीजों को। जनरल जनरल बातें नहीं करेंगे, मतलब देखो आपने क्राइम बोला तो मेरे तो दिमाग में वो जो प्रोटेक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है वही आ रहा है, ठीक है? जनरल जनरल बातें हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है, ठीक है? बहुत स्पेसिफिक मतलब और हम्म इम्पावरमेंट का आ सकता है सर एक क्वेश्चन कि हाउ टू वुमेन गेट empowered इन दी वो हम कर स्टेट। लेंगे, जो हम जब हम वुमेन का डिस्कशन करेंगे ना, तो उसमें हम हाँ एम्पावरमेंट जी। भी कवर कर ही लेंगे, मतलब सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, कल्चरल सारे एस्पेक्ट कवर कर डालेंगे वुमेन के। मतलब हम एक ऑमनिबस डिस्कशन करेंगे ऑन वुमेन, विच विल बेसिकली बी एबल टू कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, ठीक है? 3-4 7-8 उसमें एनेक्डोट्स डाल देंगे, लॉज डाल देंगे, पॉलिसीज डाल देंगे, स्टैट्स डाल देंगे, तो इतना मसाला डाल देंगे कि फिर आप अंग्रेजी को यूज करके अपनी स्टोरी बना पाओगे, काइंड ऑफ। ओके सर। और एक क्वेश्चन सर, ये रिलेट कर पा रही हूँ मैं कि एजुकेशन से रिगार्डिंग अभी वो थीम आएगी, अभी वो थीम आएगी है। आगे, आएगी वो थीम आएगी आगे, जस्ट होल्ड ऑन योर थॉट्स। एजुकेशन का अपन ने अलग से थीम बना रखा है, ठीक है? सो उस पे अपन आते हैं, बट बिफोर दैट इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर आप बात करेंगे, ठीक है? सो दे हैव आस्क्ड अबाउट ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड एंड नेटिव रिवाइवलिज्म। तो ये वो टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट। और उन्होंने जो है बहुत ज्यादा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया था, और उनकी आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज की वजह से ये टॉपिक वो टाइम पे पूछा गया था। इंडो पाक रिलेशंस एंड टेररिज्म, अब मुझे याद नहीं है कि वो उरी और बालाकोट के हमले कब हुए थे, पठानकोट, उरी, बालाकोट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो मेरे को याद नहीं है, बट वो टाइम का एक इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, अगेन ये तो थोड़ा सा मतलब बहुत ही ओल्ड फैशन टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको क्या ही बोले। इंडियाज रोल इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक था वो टाइम पे, ठीक है? एंड रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन एनहेंसिंग कंट्रीज ओवरऑल इमेज वर्ल्ड वाइड, ठीक है? अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आप देखेंगे कि हर एक टाइप का टॉपिक पूछ लिया है, कंट्री का भी एक टॉपिक पूछ लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पूछ लिया है, ठीक है, एक डायस्पोरा का टॉपिक पूछ लिया है, ठीक है, और एक जनरल प्रकार का ये टॉपिक है, ये वाला, है ना? ये भी पूछ लिया कि इंडिया का क्या रोल है, ठीक है? और ये वाला जो ट्रेंड वाला टॉपिक है,
वो भी पूछ लिया, जो करंट ट्रेंड चलने लग रहा है उसको भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया है, राइट। तो इसमें अगर मेरे को थोड़ा सा बेटिंग करना रहे, राइट, कि अगर मैं बेट करूं इस पे, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया के अंदर काफी टेंशन भरा माहौल चला हुआ है, राइट। यस सर। वेस्ट एशिया के अंदर काफी टेंशन भरा माहौल चला हुआ है, लेकिन वेस्ट एशिया जो है ना, मतलब वो हमारे को इमीडिएटली इम्पैक्ट करता भी है, लेकिन उतना भी नहीं करता जितना पाकिस्तान करता है। अब जैसे पाकिस्तान पे क्वेश्चन पूछना लाजमी था, राइट, वो टाइम पे यस जब पूछा सर। होगा। तो वेस्ट एशिया उतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, राइट। मतलब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, और अगर उस प्रकार से एग्जामिनर ने देखा चीजों को, तो वेस्ट एशिया एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी काफी डिस्कशन चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इंडिया चाहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी का रीनेगोशिएशन हो, लेकिन पाकिस्तान अग्री नहीं कर रहा है, राइट। ये एक टॉपिक ये यस चल सर। रहा है। अभी जैसे हमारी एग्जाम आ रही है, तो मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं क्वाड की मीटिंग के लिए, राइट। तो वो क्वाड की मीटिंग और एग्जाम एक इत्तेफाक भी है, और एक मतलब ये भी है, मतलब कि मतलब हाँ, और अगले साल जो है क्वाड का मीटिंग जो है इंडिया में भी होने वाली है, राइट। तो ग्लोबल ग्रुपिंग्स की प्रति इंडिया का क्या ये है, जैसे क्वाड हो गया, तो उसी प्रकार से क्वाड है। अभी जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अभी पाकिस्तान में होने वाली है अगले महीने, तो उसमें इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं, पार्टिसिपेट करने वाले कि नहीं करने वाले। तो क्वाड हो गया, एससीओ हो गया, ये प्रकार की ग्रुपिंग्स का और इंडिया का क्या रिलेशन है, ज्यादा से ज्यादा मेरे दिमाग में एज ऑफ नाउ ये आने लग रहा है कि हाउ डज इंडिया व्यू दीज ग्रुपिंग्स, हाउ रेलेवेंट आर दीज ग्रुपिंग्स, हाउ कैन दीज ग्रुपिंग्स बी हेल्पफुल, ये जो है मेरे दिमाग में आ रहा है। दिव्या, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दिस? सर आ सकता है क्वेश्चन, और एक जो अभी रशिया और उसका वो चल रहा था विवाद, वो भी पूछ सकते हैं। काफी पुराना हो गया, अब तो खत्म हो गया है। मतलब पूछना था तो 23 में पूछ लेना चाहिए था, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। वही मैंने वेस्ट एशिया के लिए बोला, वही उसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्यों बहुत दूर है अपने से। मतलब दूर मतलब से ऑब्वियस ही बात है कि अपने ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है कि वी आर अफेक्टेड बाय इट, सो वी शुड बी बॉदर्ड बाय इट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट द पॉइंट इज कि इट इज फार अवे, इट इज फार अवे फ्रॉम अस, तो हम वी डोंट केयर सो मच अबाउट इट। दैट इज द दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, not that we shouldn't care, but it's just that we don't care, right? ओके सर। इसीलिए मैं उसको उसको आपके रडार पे नहीं लेकर आना चाहता। टाइम वेस्ट, मतलब बेसिक ये बात है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता हूँ। कि कुछ जो भी करो उसमें से एटलीस्ट क्वेश्चंस या तो जनरल स्टडीज के अंदर उठ के आए, या ऐसे के अंदर उठ के आए, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस उठ के आने चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन ने अभी तक एक दो तीन चार पाँच छह एरियाज आइडेंटिफाई करें जिसपे काम करना है। ज्योग्राफी एंड जी। एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, राइट, सो रिवर इंटरलिंकिंग 2018 में पूछ लिया था, स्कार्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज 2019 में पूछ लिया था, इको टूरिज्म 2020 के अंदर पूछ लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2022, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बून और बेन 2022 के अंदर पूछ लिया है, राइट। दिस आर ऑल ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। यस। अ- अपने आप में अच्छे टॉपिक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक्स अच्छे हैं अपने आप में, बट इसको यूज करके मैं आगे का कुछ प्रिडिक्ट कर सकूं, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ मेरे को सोचना है कि how do I look at this and try to predict what is coming ahead in the future in this examination, क्या आने वाला है। क्या लगता है आपको दिव्या, क्या आ रहा है आपके दिमाग में थॉट? सर अभी रिसेंटली जो भी हमारी मतलब फार्मिंग इतनी ज्यादा मतलब खराब हुई ड्यू टू नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे कि फ्लड्स आए, करेक्ट करेक्ट, उसके वेरी ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है। हाँ जी। मतलब उसके इसमें रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कैरी आउट हो सकता है, अभी रिसेंटली जो हमारे पास डाटा क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आ सकता है कि किस वजह से वो हुआ। देखिए, नेचुरल डिजास्टर एक चीज हो गई, ठीक है, उसका अंदर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एक चीज हो गई, उसके अंदर जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है वो एक चीज हो गई, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ऑन फार्मर्स, ऑन वल्नरेबल कम्युनिटी एक चीज हो गई। और ये इसलिए मेरे को बहुत सेक्सी लग रहा है टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, कि जो भी वायनाड के अंदर मैटर हुआ, राइट, यस सर। इतनी भीषण लैंडस्लाइड्स वहां पर हुई, ठीक है, और उसके अंदर इतनी जाने गई, तो वहां पर से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो आपने फ्लड्स की भी बात कही, चाहे फ्लड्स हो, चाहे
वायनाड हो, राइट। तो मुझे हमारे लगता है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी उससे बहुत ज्यादा वो इफेक्ट हुए। हाँ, तो वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट है अपना, वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट है, और वो वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट को जो है अपने को कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यस सर। ये बहुत ही सही है आपने बोला। ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक हो गया। और आप समझ रहे हैं ना मैं इस डिस्कशन को कहाँ लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि यस सर। हम प्रिडिक्ट कर लें कि क्या आने वाला है, और उसके हिसाब से तैयार होकर चले जाएं। ठीक है, साइंस एंड यस सर। टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो कुछ ये टॉपिक्स हैं अभी तक तो सामने। तो यूथ का और टेक्नोलॉजी का जो है आपस में इंटरमिंगलिंग पूछ लिया है। कंप्यूटर मेमोरी वर्सेस ह्यूमन मेमोरी, मेरे को नहीं मालूम है, मतलब मैं ये प्रकार के टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको मैं कभी जिंदगी में प्रिडिक्ट ना करूं। ठीक है, मतलब इसीलिए बिकॉज कि मैं इसके ऊपर अगर काम करवाता हूँ, स्टूडेंट की बैंडविड्थ खर्च करवाता हूँ, और फिर वो टॉपिक ना आए, तो फिर मतलब बहुत खराब लगता है। यूज एंड अब्यूज ऑफ इंटरनेट आ गया है, साइबर क्राइम आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल थ्रेट्स आ गया है, इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन पब्लिक ओपिनियन आ गया है, राइट। ये थोड़ा सा मास मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन एक्चुअली साइंस एंड टेक का टॉपिक नहीं, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे डालूं, तो मैं इसको यहाँ पे डाल के निकल गया, राइट। अब ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो है कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स और चिप्स वगैरह के बारे में कुछ भी कभी डिस्कस नहीं करा गया। वो बहुत नैरो टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, वो जनरल स्टडीज के लायक का टॉपिक है। बट वो एक चीज है जो कि मेरे दिमाग में आ रही है, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स के बारे में एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है। एक और चीज जो कि मैं थोड़ा सा जबरदस्ती अगर सोचूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 2020 है और 2024 है, काफी डिस्टेंस आ चुका है, राइट। तो ये यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक शायद रिपीट हो जाए, क्योंकि काफी डिस्टेंस आ गया है एग्जामिनेशंस के बीच में। सो फ्रॉम अ साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ये चीज समझ में आ रही है। एक चीज हम ये जनरलाइज कर सकते हैं, वो ये है कि हाउ कैन साइंस हेल्प टैकल 21st सेंचुरी सोसाइटल चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग। वो एक जनरल प्रकार का प्रिपरेशन हो जाता है, जो कि जीएस के अंदर भी हेल्प कर जाता है, राइट। यस सर। एंड अगर उसके अंदर से कुछ निकल कर आया तो उसमें भी हेल्प हो जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक दिव्या आपके दिमाग में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। सर मुझे लग रहा है कि साइबर क्राइम भी इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है साइबर क्राइम जो है वो मतलब काफी मतलब 2018 में पूछा था, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। बट आपको नहीं लगता कि साइबर क्राइम थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक हो गया कि अपन कर सकते हैं, मतलब कोई रीजन नहीं है ना करने का। मतलब एक्चुअली साइबर क्राइम के टॉपिक को अपन थोड़ा सा ब्रॉड बना सकते हैं, राइट। यस साइबर सर। मतलब साइबर क्राइम तो इज लाइक वन एस्पेक्ट ऑफ हाउ द internet or something is hurting the society, can hurt the society, correct। फ्रॉड्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स। हाँ, तो उसको थोड़ा सा ब्रॉडन कर सकते हैं, मतलब मैं उस टॉपिक को उठा के ब्रॉडन कर दूंगा, राइट। फिर वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, करेक्ट। आपकी एग्जाम कभी है बाय द वे? 4 तारीख को? सर 3 से बोल रहे थे, 3 से 10 तारीख तक। आपकी भी है ना इस बार, 3 से 10 तारीख की है? यस सर, मेंस का एग्जाम्स है। 3 से 10 है ना, 3 से 10? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गया एक एजुकेशन जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो टाइम पे, ठीक है। तो काफी सारे यस। टॉपिक्स इसके बारे में पूछे गए थे, राइट। कि जो परफंक्टरी एजुकेशन है, जो लो क्वालिटी एजुकेशन है, उसका और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या लिंकेज है, फॉल्टी टेक्स्ट बुक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स के रेलेवेंस क्या है, उसको मैंने एजुकेशन में ही डाल दिया था। नॉलेज यस। bereft ऑफ कैरेक्टर इज डेंजरस, एंड रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कल्चरल लिटरेरी हेरिटेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारे ऑलरेडी टॉपिक्स पूछ लिए हैं, ठीक है। अच्छे टॉपिक्स है, मतलब दे आर नॉट फालतू टॉपिक्स बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, दे आर गुड टॉपिक्स, ठीक है। अब क्या लगता यस। है गोइंग अहेड क्या पूछा जा सकता है एजुकेशन के अंदर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी काफी पुरानी हो चुकी है, उसके बारे में कुछ डायरेक्ट डिस्कशन अभी तक करा नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। बहुत जनरल हो गया मतलब। इंफॉर्मेशन। बहुत जनरल हो गया ना। यस सर। स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा उसको, है ना। मतलब कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, वो काम भी आएगा। एंड
होना भी चाहिए कुछ ना कुछ तो। आई थिंक सर एक क्वेश्चन इसके अंदर पुट अप हो सकता है, एनालिसिस, कि अभी तक हमारे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या एनालाइज किया कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए, क्या वेरिएशंस क्रिएट हुई। आपका थोड़ा सा डेटा साइंस का ज्यादा बैकग्राउंड है क्या? क्योंकि आपने अ, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट डू यू डू, आपका एजुकेशन, आर यू वर्किंग समवेयर? सर वैसे तो मैं मतलब साइंस फील्ड से हूँ, हाँ हाँ। बट रिसेंटली मैं मतलब गवर्नमेंट स्कीम के अंडर काम कर रही हूँ, DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण कौशल्य योजना, है ना? करेक्ट। यस सर। सो यू आर वर्किंग इन विच हिमाचल गवर्नमेंट? यस सर, मैं अभी रिसेंटली HPSRLM के साथ कॉन्जॉइन करके वर्क कर रही हूँ एज ए सेंटर हेड। अच्छा अच्छा अच्छा। वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्साइटिंग, है ना? सो एजुकेशन से रिलेटेड आप बोल रहे हो कि मतलब मैं हर टॉपिक को ना थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ, थोड़ा सा फोकस देना चाहता हूँ। मतलब देखो, आइडियली अगर मैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं ऊपर के 5 टॉपिक्स भी आंसर कर दूं ना, तो फ्यूचर में जाके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं से आंसर हो जाएगा, राइट? बट मैं फिर भी यस सर। एक थोड़ा सा उसमें एक पैनापन लेकर आना चाहता हूँ, नैरोनेस लेकर आना चाहता हूँ, दैट इन 21st century, currently where we are standing, what are the kind of challenges that we face? तो वो मतलब एक बहुत जनरल जनरल काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक सोचिए कि इसको स्पेसिफिक कैसे बना सकते हैं, क्या ट्रेंड बन रहा है, क्या डिस्कशन पॉइंट है। अब जैसे हमारी रैंकिंग्स इंप्रूव नहीं हो रही है, 10-12 साल से हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ग्लोबल रैंकिंग इंप्रूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं हुआ, है ना? यस सर। कुछ इंप्रूवमेंट आया ही नहीं, जरा सा भी इंप्रूवमेंट, मतलब आ रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है टाइप्स। सो मे बी दैट कुड बी वन थिंग दैट कुड वी कुड एक्सप्लोर प्रोबेबली। हम्म। एक क्वेश्चन मैंने सर UPSC के इसमें देखा था। हाँ जी। अ, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जैसे हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है, हम्म उनके साथ मतलब छेड़खानी हो रखी है, कि एक्चुअल डाटा एनालिसिस कहीं हम्म भी ढंग से नहीं किया हम्म गया है। हम्म। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है शायद पुटअप। हाँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2017 का ये जो टॉपिक है, राइट, उसके अंदर ये चीज आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही है, राइट? फॉल्टी टेक्स्ट यस, बुक्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, राइट? इंडियन सिस्टम। करेक्ट। तो अब मुझे यस नहीं सर। मालूम है कि मतलब ये बीजेपी के एंगल से पूछ रहे हैं या कांग्रेस के एंगल से पूछ रहे हैं। मतलब मुझे नहीं मालूम है कि ये कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक को, राइट? सर हिस्ट्री के रिगार्डिंग था वो क्वेश्चन, कि जैसे हिस्ट्री में कुछ ऐसे तथ्य हमारे दिए गए हैं हम्म। जो कि बुक्स हमारे बुक्स में कुछ और पढ़ाया जाता है, पर उसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। लेकिन ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया, ये तब मुद्दा हुआ था जब हम एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर चेंजेस कर रहे थे, करेक्ट? हाँ जी, हाँ या जी। ये तब था जब हम बोल रहे थे कि यार देर इज प्रीडोमिनेंट अननेसेसरीली, क्या बोलते हैं, प्रीडोमिनेंट फोकस ऑन लेट्स से मुगल एम्पायर at the expense of, let us say, what was happening in other regional empires. Are you getting my point? So यस सर। that at that point of time this debate was raging on, sure, but now I'm not मतलब so convinced, मतलब कि कैसे करना चाहिए। So let's keep this part open, ठीक है? Let's keep this part open, let's see how we can kind of figure something out। नहीं है तो एक generalized तो कर ही लेंगे, if not anything else। यस uh, सर, और जैसे हमारे इसके अंदर HS के एग्जाम में ना वुमेन्स से रिगार्डिंग बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम्म। तो एजुकेशन सिस्टम में वुमेन्स का क्या रोल रहा, कितना परसेंट मतलब बढ़ा, स्तर बढ़ा एजुकेशन में गर्ल्स का, वो भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो उसके अंदर कैसा है कि अगेन दैट्स अ वेरी गुड सजेशन ऑन योर पार्ट, राइट? बहुत मुश्किल टॉपिक है यार, लेकिन वो लिखना, एजुकेशन एंड वुमेन का जो टॉपिक है ना, बहुत यस। मुश्किल है उसके ऊपर लिखना। सो आई एम नोटिंग इट डाउन, लेट्स सी कि अपन उसके अंदर से क्या कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने प्राइमरी एजुकेशन के अंदर तो 100% एनरोलमेंट अचीव करवा लिया है, राइट? यस। एंड स्लोली एंड स्टेडली हमारे जो सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया के अंदर पीएचडी करने के अंदर वुमेन आर वे अहेड, काफी आगे है। मेरे को ऐसा लगता है कि वाई आई एम नॉट सो इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस टॉपिक, उसका रीजन मालूम है क्या है? कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज नॉट फेलिंग वुमेन। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वुमेन को निराश निराश कर रहा है, सब कोई निराश कर रहा है, किसके लिए काम यस। आ रहा है ना? तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सो कन्विंस्ड,
है ना, बट आई हैव नोटेड इट डाउन। आपने जो बोला, आपने एक तो बोला एजुकेशन एंड वुमेन, राइट, और दूसरा आपने बोला कि एजुकेशन into what is the recent data saying about where the progress should be, what the progress has been, etc. यस। तो मैंने ये दोनों चीजों को नोट डाउन कर लिया है, what you are suggesting। ठीक है, लेट्स सी क्या ओके। उसमें से होता है। दिस इज समथिंग विच आई एम, ये 2022 या 23 के टॉपिक्स है, आई फॉरगॉट टू मेंशन द इयर्स, राइट, तो मैं बाद में डाल दूंगा कभी, राइट, बट ये अपने एचएएस के टॉपिक्स हैं, फॉरगिवनेस एंड कम। आई मेरे को ये वाले टॉपिक्स जो है ना बहुत खतरनाक लगते हैं, और बहुत खराब भी लगते हैं ये वाले टॉपिक्स, बिकॉज इसके अंदर कैसा होता है कि वो कुछ भी कोटेशन उठा के दे देगा और बोलेगा चलो लिखो, राइट, एंड देर आर सो मेनी कोटेशंस जिनको पूछा जा सकता है, राइट। तो ये रीसेंट ट्रेंड यस। है, दिस इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग अबाउट अर्लियर, कि 22-23 के अंदर ये लास्ट 2 पेपर जो अभी आप लोग के आए हैं, ठीक है, उसमें ये टॉपिक्स देखने को मिले हैं। फॉरगिवनेस, कंपैशन, डिलीजेंस एंड पेशेंस, प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। तो इसके अंदर कुछ भी प्रिडिक्शन लेना बहुत मुश्किल है। तो वो इफ यू हैव एनी थॉट्स ओवर हियर प्लीज शेयर, अदरवाइज आई एम थिंकिंग कि जो यूपीएससी के एक दो टॉपिक्स आए हैं इस साल, अभी जो पेपर गया है, अभी संडे को या सैटरडे को जो पेपर हुआ था, उसमें से कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है उनको अपन यहाँ पर यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर रिपीट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो ठीक है, कुछ सीख लिया। इसके अंदर यस बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी प्रिडिक्ट करना कि क्या पूछने वाला है, विच इज वेयर द, मतलब मेरे को ऐसा लगता है आगे चलते पेपर इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, कि वो ये प्रकार के टॉपिक्स पे पूछेंगे रादर देन आस्क ऑन जीएस ओरिएंटेड टॉपिक्स। बट ठीक है, लेट्स सी। तो लेट्स सी इस पे क्या कर सकते हैं। डू यू हैव एनी थॉट्स ओवर हियर दिव्या दैट यू वुड लाइक टू शेयर रिगार्डिंग कि इसमें एनीथिंग स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला कि चलो और कुछ नहीं है तो लेट्स डू यूपीएससी वाले टॉपिक्स, एनीथिंग दैट यू आर वांटिंग टू से ओवर हियर। सर एक सिचुएशन कॉज कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप एचएएस हैं हम्म। तो आपको एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दे दी कि कैसे आप उनको मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ में अडियर करेंगे। थोड़ा सा प्रिसाइज होने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा सा एथिक्स टाइप का मेरे को सुनाई दे रहा है, यस सर। जो आप बोल कि रहे हो। सिचुएशन हम्म। सिचुएशन कॉज कर देंगे ना क्वेश्चन के अंदर, हम्म। कि कोई ऐसी सिचुएशन हमें दे दी लिख के कि हम्म। इस सिचुएशन में आपकी एथिक्स मोरल्स कैसे काम करेंगे। हम्म। आपको प्रोफेशनली भी काम करना है और अपने एथिक्स और वैल्यूज को भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देना है उस टाइम। मतलब एक जनरल टॉपिक आप ऐसा बना रहे हो कि एथिकल वैल्यूज वर्सेस प्रोफेशनल डायलेमास, यस सर। ये आपने एक जनरल टॉपिक बना दिया, करेक्ट, कि इसको आप यस सर। कैसे टैकल करोगे, ठीक है, लेट्स सी। यस। मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है, लेट्स सी। एक्चुअली ये कैसा है ना कि ये एकदम सीधा सीधा जाके जीएस के अंदर भिड़ जाता है, जो जीएस का सिलेबस है। जीएस का सिलेबस यस। में भी यही मेंशन करा होगा कहीं ना कहीं, या क्वेश्चंस भी इसी प्रकार के आ रहे रहेंगे। बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। यूथ रिलेटेड टॉपिक्स ये वाले हैं, एंड यूथ बीइंग ensnared by टेक्नोलॉजी, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किलिंग यूथ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ, मेंटल स्ट्रेस अमंग यूथ इन 21st सेंचुरी, रीजंस एंड सॉल्यूशंस। इत्तेफाक की बात यह है कि अभी जो सैटरडे को पेपर हुआ, सो दैट वाज स्पीकिंग अबाउट फोमो, सोशल मीडिया से फोमो क्रिएट हो रहा है, और उस फोमो की वजह से यस। जो है लोनलीनेस एंड, नॉट लोनलीनेस, कुछ और लिखा था, एंड डिप्रेशन, ये प्रकार के मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यस सर। सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन वाज आस्क्ड, नॉट एग्जैक्टली, इट वाज नॉट यूथ रिलेटेड, मतलब पूरा यूथ के ऊपर फोकस नहीं था, बट था काफी हद तक, था यूथ के ऊपर फोकस था, राइट। यस सर। सो यूथ के ऊपर क्या पूछा जा सकता है इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट। अभी ओलंपिक्स भी हुए थे, पैरालंपिक्स भी हुए थे, इंडिया ने जो है, वो तो खैर हम स्पोर्ट्स में डिस्कस करेंगे, बट वहां पर भी यूथ ही पार्टिसिपेट कर रहा था। यस। यूथ से रिलेटेड एक जनरल चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि हाउ डू वी यू नो व्हाट शुड बी द यूथ पॉलिसी। अभी मतलब गोइंग अहेड हमारे पास एक लिमिटेड विंडो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, राइट। तो क्या करना चाहिए यस। हमारे को ताकि हम हमारे यूथ को राइट डायरेक्शन में लेकर जा सके। अभी जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट, अपना इकोनॉमिक सर्वे के उसमें भी लिखा गया था
कि इंडिया का यूथ जो है बेकार हो चुका है, घर में बैठा बैठा सिडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर और सोशल मीडिया पे टाइम पास करता करता यूथ बेकार हो चुका है। राइट। यस सर। तो यूथ के ऊपर अपन एक ऐसा टॉपिक बनाने की कोशिश करते हैं। राइट। कि हाउ टू यू नो एनर्जाइज या हाउ टू चैनलाइज द यूथ इन द राइट डायरेक्शन। इस प्रकार यस का एक सर। टॉपिक बना लेते हैं। ठीक है। और वो टॉपिक से क्या होएगा ना कि काफी सारे एग्जिस्टिंग चैलेंजेस एंड आगे के रास्ते क्लियर हो जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू मूव अहेड। ठीक है। यस। स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। 2016 में क्रिकेट ऑफ कल्चर बाय क्रिकेट ऑफ स्पोर्ट्स, या फिर इंडियन वुमेन इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, या फिर स्पोर्ट्स, ये देखिए जो आप बोल रहे थे ना, ये वाला। ठीक है। यस कि सर। विमेन के ऊपर इन लोग को क्वेश्चन पूछने की बहुत अच्छी आदत रहती है, तो इन्होंने विमेन इनटू यस। स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, जो आप मेरे को विमेन इनटू एजुकेशन बता रहे थे। राइट। यस सर। तो वो विमेन इनटू स्पोर्ट्स यहाँ पर पूछ लिया था, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो करंट माहौल चल रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी विमेन का जो क्वेश्चन आने की है वो है सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर है। राइट। कि इट्स अ यस माइंड सर। सेट इशू या जो भी है। ठीक है। स्पोर्ट्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, 2022 का ये टॉपिक है। राइट। क्या लगता है ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा? सर डेफिनेटली पूछेगा। देखिए T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। ठीक है। इंडिया जीती है इस टाइम। है ना, स्पोर्ट्स के यस। अंदर। ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप भी हम जीत चुके हैं। ओलंपिक्स के अंदर भी अभी हुआ है, पैरालंपिक्स भी अभी हुआ है, अभी इंडिया एशिया कप में हॉकी के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ गई। चेस के अंदर भी जो है काफी बातचीत चलने लग रही है। तो एक टॉपिक जो है स्पोर्ट्स के ऊपर बनता ही बनता है कुछ ना कुछ। बट टॉपिक क्या बनाना है, मतलब जहां पर देखिए टॉपिक अगर स्पेसिफिक नहीं बना तो वहां पर फॉडर मटेरियल बन जाएगा। राइट। एक जनरल यस सर। फॉडर मटेरियल जिसमें इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस है, चैलेंजेस हैं, सजेशंस हैं, स्कीम्स हैं, ये सब बन जाएगा। करेक्ट। तो उसको भी हम यस सर। यूज तो कर ही पाएंगे। करेक्ट। और उसके अंदर अपन ने यस। हिमाचल का मसाला डाल दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ध्यान रख के कि हिमाचल के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब। तो जब आप लोग लिखते हो, मेरे को एक बात बताना ईमानदारी से, है ना, जब आप लोग यस सर। लिखते हो तो आप लोग क्या इंडिया के ही आंसर्स हिमाचल में चिपका के आ जाते हो या फिर हिमाचल स्पेसिफिक लिखने की कोशिश करते हो? सर बेसिकली तो मतलब यही चलता है कि ओवरऑल लिखा जाए जो मतलब बेस्ट कंटेंट निकल के आए, कि पहले इंडिया को रिप्रेजेंट किया देन आफ्टर हिमाचल का डाला। मेरे को तो जो ऐसा जो लगता है कि स्पेसिफिक चीजें हैं। मालूम मालूम इंडिया का ज्यादा इजीली रहता है तो इंडिया वाला लिख देते हैं, और फिर अगर कुछ मालूम रहा हिमाचल का राइट यस सर। मतलब ये मेरा स्टाइल है, मतलब मैं थोड़ा सा यू नो बॉम्बे ओरिएंटेड इंसान हूँ, फ्री हूँ मैं थोड़ा सा राइट। तो मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। तो एनीवेज, अब देखिए यार ये 2023 के अंदर मेरा मतलब थोड़ा सा क्या नाम बॉम्बे वाला टोन भी आपको लगेगा शायद कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ ना, तो मैं पूरा टाइम यार अरे सुनना ऐसी बात करता हूँ मैं। ठीक है। तो आप लोग जैसे मतलब बहुत लहजे से बहुत तमीज से बात करते हो, मेरे में वो थोड़ा सा कम है। राइट। सो डोंट बी ऑफेंडेड, मैं हूं ही ऐसा राइट। सो वीगनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, हेल्थ ट्रेंड और एथिकल नेसेसिटी। क्या बढ़िया टॉपिक है ना। ये अभी यस सर। लास्ट 1-2 इयर्स में एक बार पूछ लिया था, इसीलिए मेरे को डर लग रहा है ना, कि जिस दिन ये लोग ये प्रकार के टॉपिक्स पूछने लग जाएंगे, ठीक है, तो देन देर विल बी सीरियस इश्यूज। ठीक है। तो हेल्थ को रिलेटेड क्या लगता है, दिव्या क्या पूछ सकता है हेल्थ को रिलेटेड? सर पॉलिसीज पूछी जा सकती हैं। नहीं यार, ये तो बहुत ओल्ड फैशन्ड आप बता रहे हो, नया बताओ कुछ जो चैलेंज लगे। समझे आप मेरी बात को? आज से 10-12 साल पहले उन लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि ये करेंगे, क्या पॉलिसी पूछेगा, कौन सी पॉलिसी पर पूछेगा? मेरे को देखो बहुत जनरल नहीं पूछ रहा है वो, बहुत वीगनिज्म इतना नैरो टॉपिक है, कितना स्पेसिफिक टॉपिक है, वैसा कुछ यस सर। सोचो ना। हेल्थ से रिगार्डिंग। अभी देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोरिंग, कम्युनिकेबल डिजीज बोरिंग, सिडेंट्री लाइफस्टाइल बोरिंग। राइट। तो क्या कोरोना से कोई क्वेश्चन? कोरोना? अरे यार वो तो घर मर गया, अभी वो टॉपिक ही खत्म हो चुका है। जब चल रहा था तभी नहीं पूछा अब तो यस सर। खत्म हो गया, अब क्या पूछेंगे? अब पूछ लिया तो फिर आप एग्जाम में बैठ के मेरे को ही गाली दोगे, मेरे को मालूम है सबसे ज्यादा, कि बोल रही थी इसको करवा ले, मान नहीं रहे हैं, है ना। तो नहीं वो नहीं अलग सर। इशू है। तो क्या लगता है हेल्थ से रिलेटेड कुछ, कुछ अफलातून सोचो ना, कुछ मतलब एकदम नया, मतलब तड़क फड़क वाला टॉपिक जो अभी भी चल रहा है, जिसके ऊपर बात करी जानी चाहिए।
मतलब बस मैं हाँ एक जी। ही चीज नहीं करना चाहता कि भाई मैं जीएस की पढ़ाई ऐसे के नाम पे नहीं कराना चाहता। बस। अ, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर कि जैसे अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये प्रॉमिस किया कि 70, हर एक। हाँ जी। 70 years एंड अबव इंश्योरेंस। यस सर, और दूसरा कि हर एक जो हमारा मतलब स्टेट है वहाँ पे एक एक मतलब वो दिया जाएगा, कोई बड़ा हॉस्पिटल दिया जाएगा जैसे हाँ एम्स वगैरह। हाँ। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो, है ना, कि ये जो आप बोल रहे हो ना, ये एक बहुत ही नैरो टॉपिक है। समझे आप मेरी बात को? नैरो यस। टॉपिक इन द सेंस कैसा है कि आप शायद बात करो, मतलब जहां तक मुझे याद है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या ऐसी करके एक योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर जो है ये चलती है, ये पॉलिसीज चलती है। राइट। सो ये काफी नैरो जा रहा है, समझ रहे हो? नैरो इन द सेंस कि ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, औरतों से रिलेटेड, बच्चियों से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंदर ये 25 चीजें कर रहे हैं वो लोग। समझे आप मेरी बात को? तो यस सर। अगर देखा जाए तो फिर तो क्वेश्चन उससे भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना तो कितनी ज्यादा न्यूज में रही है। राइट, उसको एक्सपैंड भी कर दिया है, 70 years एंड अबव वाले लोगों को इंश्योरेंस दे दिया है। ठीक है। तो और कोई ऐसा टॉपिक तो सर क्या ही होगा इसमें। एक बार जो है ना मैं आयुष्मान भारत को ले लेता हूँ, बिकॉज ये इंश्योरेंस की इतनी बड़ी न्यूज आई है ना, तो एक बार इसको लिख यस। के रख लेता हूँ। और इस पे कोई टॉपिक पूछा भी नहीं है। फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सबसे बड़ी स्कीम है आज के दिन। सबसे ज्यादा इसके बारे में ही बातचीत करी जाती है सरकार के अंदर। तो द टॉपिक्स दैट वी विल बी वर्किंग ऑन, अभी वाले लेक्चर के अंदर तो वी विल डिस्कस सम मोर कंटेंट की, हम इंट्रोडक्शन, बॉडी कंफ्यूजन एक्सेट्रा के ऊपर। तो अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हो वो अपन डिस्कस करते हैं पहले, सबसे पहले। बट मैन्युफैक्चरिंग जॉब, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वुमेन सिक्योरिटी, वेस्ट एशिया, क्वाड एससीओ, नेचुरल डिजास्टर्स, साइबर क्राइम, थोड़ा सा ब्रॉड करना है, साइंस एंड सोसाइटी, एजुकेशन के अंदर आपका कहना है एजुकेशन इनटू वुमेन या एजुकेशन इनटू डेटा के ऊपर कुछ करने की कोशिश करेंगे। एथिकल के अंदर एथिकल वैल्यूज वर्सेस प्रोफेशनल डायलेमा, यूथ के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि हाउ टू एनर्जाइज यूथ इन द राइट डायरेक्शन। स्पोर्ट्स के अंदर कुछ फॉर्डर मटेरियल तैयार करेंगे, एंड हेल्थ में आयुष्मान भारत का तैयार करेंगे। मतलब ये 10-12 चीजें जो है ये हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली जो मेरा दूसरा प्रिपेयर्ड अच्छा कंटेंट अवेलेबल है फ्रॉम, जो मैंने यूपीएससी की जो एसएस का जो फॉर्डर मटेरियल तैयार कर रखा है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें से अगर कुछ काम हो जाता है तो मुझको लगता है कि यार इतना अगर कर लेते हैं अपन ना, तो एवरीथिंग यस दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट प्लस जो भी हम कर लेंगे, मुझे लगता है कि यार दो ऐसे तो आप निकाल ही दोगे उसके अंदर से, एक दो ऐसे तो आप मतलब 2-3 टॉपिक तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से सर आपको। जो ऐसे का एग्जाम रहता है ना, उसमें हमें कितना परसेंट मतलब करना होता है एग्जाम। मतलब कितना परसेंट मतलब? मतलब कितने क्वेश्चंस अगर हम बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से लिख लेंगे तो हमारी सिलेक्शन पक्की है मतलब। देखिए उसमें 2 सेक्शन रहते हैं, और आपको 2 सेक्शन में से एक एक सेक्शन, दो दो अपने 8 टॉपिक रहते हैं, चार एक सेक्शन में, चार एक सेक्शन में, चार। तो आपको दो 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 लिखने रहते हैं ऐसे, एक एक टॉपिक आप सेक्शन ए में से उठाएंगे, एक टॉपिक आप सेक्शन बी में से उठाएंगे। राइट। एंड यस। मेरे को जहां तक अपना ये मालूम है, याद है, तो वो लगभग 50-50 मार्क के आपके ये रहते हैं। राइट। तो इस प्रकार से वो होता है, तो आपको दो ऐसे तो लिखने ही पड़ेंगे ना दिव्या। एम आई करेक्ट? यस सर। 2 टॉपिक तो आपको लिखने ही पड़ेंगे ना, मतलब, और 2 टॉपिक ना लिखने का तो आपके पास चॉइस ही नहीं है ना, उससे कम तो आप लिख ही नहीं सकते हो ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, मतलब आप शायद कुछ और पूछ रहे थे और मैं नहीं समझा, ऐसा कुछ हुआ या क्या हुआ? सर मेरे यही क्वेश्चन था कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि जो पहले हमारे दो पेपर रहते हैं उनमें हमें मतलब 50% क्लियर करना कंपलसरी रहता है। वो तो एलिजिबिलिटी वाले पेपर्स हो गए ना, हिंदी और इंग्लिश हाँ की आप बात कर जी, रहे हो ना? हिंदी और इंग्लिश हो गया। देन आफ्टर जो जितने भी एग्जाम रहते हैं जैसे एसे राइटिंग वाले जो रहते हैं, उनमें कितना परसेंट अगर हम मतलब कर लेते हैं एग्जाम तो नहीं, सिलेक्शन होना। मुझे नहीं लगता है कि उसमें वैसा है। अपन कंफर्म वापस कर लेंगे, आप भी करना। मुझे को ये मालूम है कि ये 100 मार्क्स का पेपर है, 50-50 मार्क के आपको दो ऐसे लिखने हैं, है हाँ ना? जी, हाँ जी। 50-50 मार्क के आपको ऐसे लिखने हैं। राइट। और वो आपके उसके अंदर फाइनल मार्क्स के अंदर वो काउंट हो जाते हैं। तो जितने भी आपके और नंबर जो आए।
ऐसे वाला पार्ट रहता है सर उसमें, मतलब जो हमें एग्जाम लिखना है, तो क्या ऐसी मॉडिफिकेशन करें अपने एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन, क्या ऐसा डाटा एनालाइज करके डालें उसके अंदर कि हमारा जो आंसर राइटिंग है वो ज्यादा अच्छी इम्पैक्टफुल हो। हाँ, तो अभी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। राइट, तो अभी मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। और अभी मैं यही आपके साथ, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड। तो देखिए, ऐसे के अंदर कैसा है, यू आर आस्क सो योर बेसिक क्वेश्चन इज हाउ टू राइट गुड एसेस, यही आपका क्वेश्चन है, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। अभी यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, राइट, कि हाउ टू राइट ओके। लेट्स से गुड एसेस, ठीक है। सो ऐसे के 3 कंपोनेंट होते हैं, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, आई एम होपिंग, राइट। यस सर। तो ऐसे के 3 कंपोनेंट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो अभी जो हमारे पास 10-12 मिनट बचे हैं, ठीक है, इस सेशन के अंदर, उसके अंदर लेट अस डिस्कस द इंट्रोडक्शन एस्पेक्ट, कि फटाके मतलब एकदम मस्त वाला इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट ओवर हियर, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन जो है ना, दैट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब आप, मतलब अगर सपोज कर लीजिए कि आप किसी से शादी की बात करने जा रहे हो, हाइपोथेटिकल सिनारियो, राइट। तो आप किसी भी इंसान से मिलोगे, लड़का या लड़की, वट एवर द केस में भी से आप मिलोगे, तो दैट फर्स्ट इंप्रेशन हैज टू बी वेरी गुड, राइट। आप एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाना चाहते हो। तो मेरे को याद है, मैं तैयार होके गया था, है ना। मैं ऑटो में गया था एज कम्पेयर टू बस में जाने से। फिर मैं गया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ जो भी है वो तो होंडा सिटी में आई थी, मेरे को तो बहुत खराब लगा था, राइट। तो तो द आइडिया इज दैट कि वो मेरे को अभी बोलती है कि यार तुम बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे थे, मतलब अंग्रेजी से ही इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, बहुत फंडे झाड़ रहे थे। सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से ओवर हियर इन अ लाइटर वे इज दैट essay is like your first impression and it has to be good। आपका जो यस सर। फर्स्ट फर्स्ट पेज है ऐसे का, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ही मरा हुआ फर्स्ट पेज लिखते हैं, बहुत ही सड़ा हुआ फर्स्ट पेज लिखते हैं, मतलब उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। और एक्साइटमेंट नहीं रहती मतलब क्या, कि उसमें कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है, कोई कोटेशन नहीं है, कोई पोयम नहीं है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई करंट बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब सेंटेंस के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद सेंटेंस लगा दिए गए हैं टॉपिक से रिलेटेड, और बस कुछ बना के डाल दिया गया है। वाव नहीं है, देर इज नो वाव, ठीक है। अब इसमें आपको दो सर बोलो, एक बोलो। वीडियो के अंदर मैंने एक चीज हम्म मतलब सुनी थी हम्म कि जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि कोई क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से आता है, हम्म हम्म हम्म। तो उसमें मतलब पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं करनी है उसको, मतलब इतना अटेम्प्टिंग बनाओ कि मतलब जैसे उसके अंदर पॉइंट्स डालो, हाईलाइटिंग करो, हाँ, और वो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आते हैं हम्म। उनके अंदर पैराग्राफ लिख दो, ताकि मतलब जो एग्जामिनर है वो इतना ध्यान से ना पढ़े। तो ये इम्पैक्टफुल है सर। देखिए, हमारे को ऐसी सिचुएशन में ही नहीं जाना है, हम तो क्या है ना, मतलब हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग यस, क्योंकि जो पॉइंट्स है वो ज्यादा इजीली नजर में आ जाते हैं, एंड पैराग्राफ्स के अंदर जो है आप गोलो मोलो चीजें छुपा के डाल सकते हो। बट या दैट इज फाइन। बट सी, दैट इज सी, अगर आपने अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन के अंदर गोलू मोलू चीजें छुपा के डाल दी पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि वो पढ़ने तो वाला ही है ना, ऐसे का पहला पेज वो पक्का पढ़ेगा। जब मैं पेपर हाँ चेक जी। करता हूँ ना, तो मैं ऐसे का पहला पेज और लास्ट पेज पढ़ के ही डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को क्या करना है। और फिर बड़ी अनिच्छा से, बड़ी यू नो बड़ा रिलक्टेंटली जो है मैं बीच का सामान पढ़ता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। यस सर। नॉट बिकॉज कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बट बिकॉज मेरे को मालूम है कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है उसकी क्वालिटी से मेरे को समझ में आ जाएगा कि या तो अगर मैं 150-200 वर्ड्स पढ़ के अपना काम खत्म कर सकता हूँ, तो वाई शुड आई रीड 1200 वर्ड्स, राइट। जबकि यस मेरे को सर। तो काम खत्म करना है। सो दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, दैट द इंट्रोडक्शन टू योर एसे शुड बी गुड। आपको इंट्रोडक्शन स्पेसिफिकली तैयार करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक अच्छे इंट्रोडक्शंस आपको तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस देता हूँ, ठीक है। तो ये यस एक सर। ऐसे है किसी एस्पिरेंट का, किसी एग्जामिनेशन का, जो मेरे को मिला था, ये पेपर बहुत अच्छा लगा था मुझे, राइट। यस सर। और ये बंदे ने जो है ना, मतलब पोयम से स्टार्ट करना जो है ना, इसने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना ली था। अदरवाइज ऑल्सो वेरी गुड राइटर ये बंदा, बट इसने पोयम से यस सर। स्टार्ट करता था। अब देखिए, कैन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। तो देखिए कितनी अच्छा इन्होंने ये पोयम लिखी है कि द अर्थ वॉज फाइन, लश ग्रीनरी डिवाइन, मेलोडी संग स्वीट, जो भी आगे, बट फॉर द ग्रीडी लस्टी मेवरिक, ट्रीज बिकेम डॉलर्स, द एयर गॉट सिक। तो आप देख सकते हैं मेवरिक और सिक आपस में राइम कर रहा है, डिवाइन और डिफाइन आपस में ये कर रहा राइम है, कर रहे राइट। हैं।
nature got replaced by the mindful mind. Alas, we yearn for a great rewind. So again ये राइम कर रहा है. मैन बिकेम रोग, मतलब रोग का मतलब ये हो गया कि आप कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो. मेवरिक, रोग, डॉलर्स, राइट. तो ये सारे वर्ड्स क्या आप बता रहे हैं? ग्रीडी, लस्टी, मेवरिक, डॉलर्स, रोग. यानी कि आप पागल हो चुके हो, क्वाइट लिटरली. फ्रॉम लेट्स से अब पैसे के पीछे इतने भूखे हो गए हो कि आप बर्बाद करने में तुल चुके हो, राइट. मैन बिकेम रोग, एनवायरमेंट गॉट सैवेज, to be rich and prosperous can we manage. So since man became rogue, since man ने environment के साथ बदतमीजी स्टार्ट कर दी, so environment ने man के साथ जो है savage होना स्टार्ट कर दिया. यानी कि जो आप disasters जिनकी आप बात कर रहे हो वो सब होने लग गए. And to be rich and prosperous can we manage. ठीक है. तो आप देख रहे हो कि ये कितनी ब्यूटीफुल स्टार्ट है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी पोयम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से. मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे मेजर थीम्स है उससे रिलेटेड अगर कुछ अच्छे पोएम्स इस प्रकार के हैं हमारे पास, या हम बना सकते हैं, या हम कोशिश कर सकते हैं इस प्रकार की. द इम्पोर्टेंट टेक अवे आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस थिंग इज कि कोशिश कर सकते हैं. एंड देन यू स्टार्ट. तो इससे क्या होता है कि इट्स अ वेरी यूनिक स्टार्ट. इतना अच्छा स्टार्ट हर बार पॉसिबल नहीं है. मैं नहीं बोल रहा हूँ दिस शुड बी द बेंचमार्क, बट कोशिश है, राइट. तो इसमें यस फिर ये शुरू हो जाता है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट इमर्ज ऑन अर्थ. दे न्यू दैट दे हैड बाउंटीफुल ऑफ रिसोर्सेस, राइट. इंडस वैली सिविलाइजेशन, मार्वलस हार्मनी, राइट. सिनर्जी, राइट. स्पेस ऑफ यस ग्रीड, spark of greed. We started digging our own graves, disregard, right. And now we are यस in stuck. तो ये जो फर्स्ट पेज है, what does this indicate? This first page clearly tells you that बॉस ये बंदे को मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं. इसको मालूम है कि अच्छा ऐसे कैसे बनाना है. इसने एक स्टोरी दी, एक पोयम दी है विच इज अ वैल्यू एडेड कंपोनेंट. उसके बाद इसने कुछ चीजों को अंडरलाइन करा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात इसने यहाँ पर करी. अब आगे चल के ये क्या करेगा, एग्जामिनर को इस पे ट्रस्ट है. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. ठीक है. शॉर्ट स्टोरी का टॉपिक वाज दैट द वर्ल्ड द नीड्स वर्ल्ड गांधी जीज आइडियाज मोर देन एवर टुडे. तो इन्होंने स्टोरी किसकी उठाई? सबसे इजी, मुन्ना भाई एमबीबीएस. लोकल हेंचमैन वरीड अबाउट अ प्रॉब्लम, टेंस अबाउट रिलेशनशिप, फॉल्स asleep in a library, man like nap like any other day. However, this day was different. Found all solutions to his issues in the dream. After being guided by a historical figure. What a simple solution. Gandhigari, right? Lage raho Munna Bhai. It may be a work of fiction, but it is a solution to many of our problems. So world needs more of Gandhiji's ideas. Rise of terrorism. So easy to read. आप देख रहे हैं, फ्लो होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए आपका, राइट. जो अभी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो वो रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने इंट्रोडक्शन को यादगार बनाइए, कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार, 10 पेपर पढ़े, सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन तो यही था, या सबसे अच्छा कंटेंट तो यहीं पर, मसाला तो हमारे को यहीं पर मिला. तो इससे क्या होएगा कि वो आपकी आपके चार खून माफ भी कर देगा. ठीक है. आपके छोटे मोटे ब्लंडर्स को ओवरलुक कर देगा. एक और एग्जांपल लीजिए. ठीक है. करंट बैकग्राउंड भी आप डाल सकते हैं. मतलब आप हर ऐसे के अंदर पोयम नहीं डाल सकते, आप हर ऐसे के अंदर जो है शॉर्ट स्टोरी नहीं डाल सकते. डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक. अब आपके सामने कोई टॉपिक आ जाता है, एंड प्लीज डोंट बी बायस्ड. मतलब ऐसे मत सोचना कि अच्छा ये स्टोरी मुझे मालूम है तो जबरदस्ती में ये ऐसे लिख दूं. नहीं, आपको ऐसे पूरा लिखना आना चाहिए. इंट्रोडक्शन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, बॉडी इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, कंक्लूजन इज अ वन पार्ट ऑफ इट. तो ऐसे इंट्रोडक्शन पे बायस नहीं होना है हमारे को. इंट्रोडक्शन के ऊपर हमारे को बायसनेस नहीं क्रिएट करनी, बट इंट्रोडक्शन इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट. सो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि इंट्रोडक्शन अच्छा आता है इसलिए ऐसा लिख देंगे. ऐसे हम वही लिखेंगे जिसको हम पूरा लिख सकते हैं, जिसपे हम जितने भी वर्ड्स रिक्वायर्ड है, 1200 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, वो पूरे लिख सकते हैं. बस फर्क ये करने की कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा पॉसिबल इंट्रोडक्शन है वो लिखने की कोशिश करेंगे, कीपिंग दीज इन माइंड. अब जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था वो टाइम पे. दिव्या, एम आई आर यू देयर विथ मी? हेलो दिव्या, आर यू देयर? सो द आइडिया बीइंग दैट, यस सर या थैंक यू. सो जब वो टाइम पे वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो वही वो टाइम पे क्या हुआ था कि जो गाजीपुर लैंडफिल है दिल्ली के अंदर, गाजीपुर लैंडफिल, उसमें आग लग गई थी.
और उसकी वजह से यस। काफी भारी पॉल्यूशन होने लग रहा था, राइट। सो और ये गाजीपुर लैंडफिल के अंदर क्या हुआ था ना कि कचरा जो है फ्लो होता हुआ रोड के ऊपर आ गया था और उसने हाईवे के ऊपर चलती हुई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी और बहुत सारे लोगों की जो है ये हो गई थी, डेथ। डेथ हो गई थी और न्यूसेंस हो गया था और सब कुछ हो गया था। तो ये बहुत मतलब ताजा ताजा हुआ था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ताजा ताजा हुआ था यस। वो टाइम पे। तो ये बंदे ने क्या करा कि ये गाजीपुर लैंडफिल एनसीआर लैंडस्लाइड को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, बिकॉज ये वेस्ट मैनेजमेंट का फेलियर का पोस्टर बॉय है। किसी भी लैंडफिल का इस प्रकार से आगे जाना, ये पोस्टर बॉय है अपने वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम का। सो 60 डेथ न्यूसेंस, राइट, सॉलिड वेस्ट, ओपन डेफिकेशन, ओवरफ्लोइंग सिवर्स, पाइलिंग गार्बेज, राइट, क्लेनलीनेस इज गॉडलीनेस। तो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि अंडरलाइन वगैरह नहीं करते, ठीक है, पेपर के अंदर। यस। तो उससे क्या होता है, पढ़ना पड़ता है पूरा। किसके पास टाइम है, कौन इंटरेस्टेड है? आपको क्या लगता है आप जो लिख रहे हो बहुत मतलब तोप लिख रहे हो, उसको एग्जामिनर को अपना काम खत्म करना है, ठीक है। सो नंबर वन, दिस स्टोरी इज वेरी रेलेवेंट टू द टॉपिक। एंड नंबर टू, वापस से हाईलाइट करी हुई है कुछ चीजें, बिकम्स इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। शॉर्ट स्टोरी का एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये द वीक मेरी फेवरेट मैगजीन है, उसके अंदर से मैंने निकाला कि ये यस। इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी दी थी, ठीक है, रिगार्डिंग कैशलेस ट्रांजैक्शंस, मनी चेंजर्स, इंडियाज फिनटेक इंडस्ट्रीज चेंजिंग द वे इंडियंस यूज मनी। तो हाउ इंडियंस यूज मनी के ऊपर बात करा जा रहा है, राइट। तो आप देखिए कि कितनी यस। बढ़िया शॉर्ट स्टोरी है कि विपिन स्टिल रिमेंबर्स द शाइनी न्यू कार्ड दैट केम बाय courier. He had grown up gawking diners club card commercials on Doordarshan in pre-liberalization India, right? यस। Then he applied for the credit card. Then the credit card arrived. Then Vipin realized कि हाँ अब मेरी औकात है, अब मेरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग has become strong, right? बट वो अपने कार्ड को लेकर जाता था, राइट। सो नॉट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स फॉर यूजिंग दोज कार्ड्स। शॉपिंग ऑनलाइन यूजिंग अ कार्ड, ये भी नया था, राइट। सो दे यूज टू गो टू, विपिन यूज टू गो टू ओनली वेरी फ्यू रेस्टोरेंट्स जहां पर उसको अपने कार्ड को यूज करने का मौका मिलता था, राइट। एंड ही ऑलवेज कैरीड कैश, कैश बिकॉज कार्ड चले ना चले क्या गारंटी थी। ये बात कर रहे हैं आज से हम 10-15 साल पहले की सिनारियो की, ठीक है। यस। आज की अगर बात करें तो विपिन डजेंट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग अ फिनटेक ट्रांजैक्शन, डूइंग एनईएफटी, ऑर्डरिंग ऑनलाइन, यूजिंग गूगल पे, कैब राइड, पेटीएम डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, फोन पे। एंड अब वो थोड़ा बहुत छुट्टा लेके रखता है जस्ट इन केस कि अगर कोई मिल गया जिसके पास नहीं है तो। बट अब उसका मेजर मेजर काम उसके ऐप और उसके कार्ड्स के ऊपर होने लग रहा है। सो व्हाट डज दिस स्टोरी टेल यू? अब आप बताओ दिव्या कि ये स्टोरी आपको क्या बताती है। ये बता रही है सर कि कैसे हमने मतलब एडवांसमेंट को अडेप्ट कर लिया है लाइफ के अंदर। ये बता रही है और कि 15-20 सालों के अंतराल के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका यस सर। है। एंड इफ योर टॉपिक इज फिनटेक, if your topic is this topic ki, how is it, let's hypothetically assume that your topic is fintech or the topic is around the digital transactions or digital payments etc etc के ऊपर अगर टॉपिक है, तो क्या आप इससे बेटर इंट्रोडक्शन लिख सकते हो? नहीं सर, एनालिसिस अच्छे से हो गया है इसके अंदर। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा पुराने हूँ, और मतलब अगेन माय टेक अवे ओवर हियर दिव्या इज नॉट कि हम इसको रट्टा मार के चले जाएं, वो तो हम कर भी नहीं सकते हैं, राइट। बट यस सर। जो हम अगर बनाने की कोशिश करें तो हमारे को इस एंगल पे जाने की कोशिश करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोटेशन, राइट। सो कोटेशन के अंदर वोटिंग इज अ राइट अपॉन विच ऑल अदर राइट्स डिपेंड, अगर ये टॉपिक है, ठीक है। सो वोटिंग इज द राइट व्हिच इज ऑल अदर। मतलब मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट है वोटिंग का, विच रिमाइंड्स मी, हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन मैंने लिख लिया, ठीक है। सो राइट ऑफ वोटिंग, तो मतलब आप कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो कि द राइट ऑफ वोटिंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स इज द प्राइमरी राइट बाय विच अदर राइट्स आर प्रोटेक्टेड। टू टेक अवे दिस राइट इज टू रिड्यूस अ मैन टू स्लेवरी, फॉर स्लेवरी कंसिस्ट इन बीइंग सब्जेक्ट टू द विल ऑफ अनदर, and he that has not a vote in the election of representatives is in this case, right? यस सर। So quotation can be one way. Then another last thing could be historical background, right? क्या आप एक historical background दे सकते हो
कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन जैसे आपने बोला। डाटा ये एनालिसिस भी डाल सकते हैं सर। मैंने पढ़ा था ये हाँ रिसेंटली, अभी मैं एक वो कर रही थी क्वेश्चन उसमें, हाँ कि जैसे कई ऐसी मतलब कंट्रीज है जहाँ पे वोटिंग देना मतलब कंपल्सरी है। हाँ अगर कोई वोट नहीं डालता है तो उसको मतलब फाइन पड़ता है। हाँ पर हमारे इंडिया में ये चीज मतलब नहीं है। हमारे इंडिया में अपने फ्री ऑफ माइंड हाँ सेटअप के हिसाब से अगर डालना चाहे तो डाले, नहीं हाँ। डालना है तो नहीं डाले। करेक्ट 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 है। हाँ वॉलेंट्री। मतलब देखिए, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ट्राई टू इंश्योर ओनली वन थिंग, कि यू आर राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई, मुझे मालूम नहीं थी कि कहाँ पर कंपलसरी है। तो मुझे ये चीज जानने में जरूर इंटरेस्ट होगा एज एन एग्जामिनर। तो ये चीज आपने बहुत सही बताई। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो भी आप पैतरा अपनाओ, वेदर इट इज शॉर्ट स्टोरी और वेदर इट इज कोटेशन, वेदर इट इज पोएम, वेदर इट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वेदर इट इज करंट बैकग्राउंड, जो भी आप पैतरा अपनाओ, जस्ट मेक श्योर कि इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक। ये चीज आप जरूर इंश्योर कर लेना। कि कई बार कैसा होता है, ये चीज आप गार्ड करना, कि जस्ट बिकॉज हमें कोई चीज मालूम है, उस टॉपिक से रिमोटली रिलेटेड है वो अगर, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया लेकिन उस चीज पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम जबरदस्ती उसको उठा के डाल देते हैं। फोर्स फिटिंग इसको बोलते हैं, कि सिंस हमें मालूम है, सिंस यस। हमने पढ़ रखा है, तो हम बता देते हैं। राइट। तो जस्ट इससे हमें बचना है। राइट। बट यू आर राइट कि अच्छा कंटेंट अगर रिलेवेंट तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, वोटिंग इज द राइट अपॉन विच ऑल अदर राइट्स डिपेंड, इसमें जरूरी नहीं है कोटेशन से स्टार्ट करना है, इसमें आप करंट बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मालूम है कि वोटिंग परसेंटेज क्या है इंडिया का, तो वो करंट बैकग्राउंड हो यस गया। सर। आप इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्या बता सकते हो कि वोटिंग राइट लेने के लिए इतना कितनी लड़ाई परसेंट। करी है। करेक्ट। तो आप कहीं से भी मतलब इनमें से कोई भी पैतरा अपना सकते हो, बस जस्ट दैट कि मैं आपको सारे पैतरे का ये दे रहा हूँ। टू गिव यू अ लास्ट एग्जांपल, यस। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। राइट। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ईयर वाज 1945। ठीक है। कोरिया वॉर, कोरियन पेनिनसुला की बात कर रहे हैं हम। तो दो कोरियाज क्रिएट हुए, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सो बिफोर पार्टीशन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया होमोजीनियस थे, बट आफ्टर डिवीजन अलग हो चुके। schools in North Korea, they chose to educate their children in the worship of cult leader। cult leader यानी कि वहां के जो डिक्टेटर्स हैं, उनकी जो है मतलब आपको आओ भगत करनी सिखा दी। उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिनेशन करनी स्टार्ट करी, उनको सर्विलिटी सिखाई। राइट। वेरा साउथ कोरिया के अंदर उन्हें लिबरल एजुकेशन दी गई, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करवाया गया। आज 70 साल बाद जो डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ कोरिया का, वो डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वाज गिवन। यहाँ पर जो है आपको एजुकेशन जिस प्रकार की मिली, तो उसमें कोई इनोवेशन, कोई R&D, राइट, कोई इंडिपेंडेंट थॉट, राइट, कोई फ्रीडम, ऐसी कोई बात नहीं थी। और वो सारी बातें साउथ कोरिया की एजुकेशन के अंदर थी। आज जो दो कंट्रीज का जो डिफरेंस है वो क्लियर है। राइट। तो नॉर्थ कोरिया, यस। इट इज नोन फॉर ग्रॉस वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। साउथ कोरिया इज चैंपियन ऑफ लिबरल लिबरल डेमोक्रेसी। नॉर्थ कोरिया के अंदर इतनी ज्यादा गरीबी है कि पूछो मत, साउथ कोरिया के अंदर इतनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी की पूछो मत। राइट। So this only proves the यस। age-old adage that the destiny of a nation is indeed shaped in its classrooms. So it's a very short, crisp, and concise way of. This is a very short, crisp, and concise way of, putting the idea over here that historical बैकग्राउंड दे दिया हमने कोर्ट से रिलेटेड, एंड क्लियरली बता दिया कि क्या चल रहा है। मेक सेंस? यस सर। राइट। सो मैं अगेन आई एम जस्ट रिआइटरेटिंग कि इसी टॉपिक से रिलेटेड आप कोई पोयम से स्टार्ट कर सकते थे, इसी टॉपिक को आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते थे, इसी टॉपिक को आप शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते थे, इसी टॉपिक को आप करंट बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो आप किसी भी टॉपिक को किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास मसाला कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। सो यस सर। व्हाट इज पावरफुल इंट्रोडक्शन? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट शुड बी लिंक्ड टू द टॉपिक। अगर आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक से एकदम डायरेक्टली क्लियरली लिंक्ड नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। इट हैज टू बी डायरेक्टली लिंक्ड, क्लियरली लिंक्ड टू योर टॉपिक, डायरेक्टली एंड क्लियरली। ठीक है। एंड यस। उसमें क्लियर समझ में आना चाहिए कि आप आगे क्या बात करने वाले हो। राइट। क्लियर, बहुत क्लियरली लिंक होना चाहिए विथ योर बॉडी। राइट। वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक विद द बॉडी। इंट्रोडक्शन कैची होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ यादगार होना चाहिए, अपीलिंग यानी कि यूनिक होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए,
कई बार इंट्रोडक्शन ही 2 पेज में जा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पेशेंस नहीं है, राइट? सो इट शुड बी yes, कंसाइज एंड इंट्रोडक्शन आपकी थीसिस से रिलेटेड होना चाहिए. इट शुड टच द टॉपिक, इट शुड टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक, राइट? एंड इट शुड इंडिकेट कि आगे क्या आने वाला है. इट शुड क्लियरली इंडिकेट कि आगे क्या आने वाला है. These are some of the things that you need to keep in mind regarding introduction. जो भी इंट्रोडक्शन अभी हमने देखे, राइट, ये सारे कंसाइज है, टू द पॉइंट है, रिलेटेड टू द टॉपिक है, और आगे क्या आने वाला है उसके बारे में बात यहाँ पर करने लग रहे हैं. तो जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा दिव्या कि yes sir. हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर एसे फ्रॉम जनरल स्टडीज, राइट, तो मैंने उसका अभी Yes. आपको 1/3 आंसर दे दिया है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन. कल के लेक्चर के अंदर जब हम 9:30 को मिलेंगे तो मैं आपको बॉडी एंड कंक्लूजन कैसे बनाना है, यानी कि रिमेनिंग 2/3 ऑफ द एसे के ऊपर कैसे करना है, वो बता दूंगा. और उसके आगे वाले लेक्चर्स के अंदर जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करें, उन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे. मेक सेंस? Okay sir. मेक सेंस दिव्या? Yes sir. अच्छा लगा? Yes sir. राइट, तो अपन वापस से मिलेंगे कल 9:30. राइट, आई विश टू सी यू इन द क्लास, आई होप टू सी यू इन द क्लास. ठीक है, Yes sir. एंड फिर वी विल टेक इट अहेड फ्रॉम देयर. राइट, Okay, okay sir. ऑल Thank you राइट, sir. श्योर श्योर, बाय, थैंक यू.